नमस्कार, मैं सीए मनमोहन जी, social worker from Mumbai. Today we shall discuss international standards applicable for social development. So, in recent years, corporate social responsibility has gained the importance on international space as an emerging form in the business. So, we know that corporate social responsibility is to set aside a certain percentage of profit for the benefit of the society, for the service of the society. So in India, a company has to spend 2% from the company's net profit. So many non-profit social organizations or enterprises are getting the funding supports. So as per section 135(1) of the Companies Act 2013, read with Companies CSR Policy Rules 2014, made the satisfying criteria for CSR compliance. The eligible company is net worth of rupees 500 crore or more, turnover rupees 1000 crore or more, and net profit of rupees 5 crore or more. So these three conditions are exclusively, and if any one of the condition is fulfilled, he has to comply the CSR policies. So companies report their effort towards sustainability through various international standards such as OECD guidelines for multinational enterprises, UN guiding principles on business and human rights, UN Global Compact, and the Universal Declaration of Human Rights and Global Reporting Initiatives. So here it is not elaborated much. These are the long chapters you have to study in separate, or if possible, we shall make the videos on that. So, in brief, the OECD guidelines for multinational enterprises are recommendations from governments to multinational enterprises on responsible business conduct. कि रिस्पॉन्सिबल बिजनेस कंडक्ट आप कैसे करेंगे, मल्टीपल एंटरप्राइजेस को एक गाइडलाइंस हैं, रिकमेंडेशंस हैं फ्रॉम द गवर्नमेंट्स. द OECD guidelines set standards for responsible business conduct across a range of issues such as human rights, labor rights, and the environment. तो बिजनेस कैसे करेंगे कि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे. बिजनेस आप ऐसे करें कि चाइल्ड लेबर ना हो, लेबर के राइट्स प्रॉपर मिलें, लेबर का एक्सप्लॉयटेशन ना हो, लेबर का यूज ना हो, लेबर को मेंटली हैरेसमेंट ना हो, और हर आदमी का ह्यूमन राइट्स बरकरार रहे. इस टाइप की गवर्नमेंट गाइडलाइंस लोगों को दी जाएंगी, बिजनेस एंटरप्राइजेस को दी जाएंगी, मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेस को दी जाएंगी, so that they should not harm the environment, harm the people of the nation, and harm the human rights of the. Another is the UN guiding principle contains three chapters or three pillars: protect, respect, and remedy. सबसे पहले प्रोटेक्ट करना है, उसके बाद रिस्पेक्ट भी करना है, और कोई दिक्कत है तो उसकी रेमेडी भी करना. Each defines concrete actionable steps for governments and companies to meet their respective duties and responsibilities to prevent human rights abuses. अगर human right का कोई abuse हो रहा है तो उसको prevent करना है in company operations and provide remedies if such abuses take place. जैसे पॉश एक्ट है, सेक्सुअल हरासमेंट एट दी वर्क प्लेस है, और इस टाइप की कुछ हैं कानून. तो उसमें क्या है कि सबसे पहले तो हमें प्रोटेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है, तो यदि हो जाए तो उसकी रेमेडी. तीसरे नंबर आता है यूएन ग्लोबल कॉम्पैक्ट, दैट इज ए पार्सल ऑफ आवर स्टडी एंड शैल बी रेड इन द ड्यू कोर्स because it is
described at another level. If we discuss it here, it will definitely be a long video. The Universal Declaration includes civil and political rights like the rights of life, liberty, free speech and privacy. तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन क्या है कि सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स आपके होने चाहिए, जीने का अधिकार होना चाहिए, आपके पास लिबर्टी होनी चाहिए, फ्री स्पीच होनी चाहिए और राइट टू प्राइवेसी होना चाहिए. इट आल्सो इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स like the right to social security, health and education. अगर किसी के पास पैसे नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो बीमारी से मर ही जाए. उसके पास फ्री इलाज की सुविधा होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से. सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए यदि उसको बेसिक कम्युनिटीज गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए यदि वह कमाने में अक्षम है. और एजुकेशन पर सबका पूर्ण अधिकार. These international standards are voluntary guidelines and are subject to regulatory compliance. So इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स वॉलंटरी गाइडलाइंस हैं या कंपल्सरी गाइडलाइंस हैं. तो यू हैव टू राइट वॉलंटरी गाइडलाइंस एंड आर सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी कंप्लायंस. तो इसके ऊपर कुछ रेगुलेटरी कंप्लायंस भी डाले हुए हैं ताकि कोई भी आदमी इससे बच ना पाए. ठीक है साहब. So आगे there are challenges of comparability faced by the social sector. तो कुछ challenges भी फेस कर रही हैं सोशल सेक्टर को. वो challenges क्या क्या? नंबर वन, सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया वेराई इन टर्म्स ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेशंस. सो हमने पढ़ा था कि इंडिया में इनका रजिस्ट्रेशन और रेगुलेशन अलग अलग तरीके से होता है. ट्रस्ट ट्रस्ट डीड बनाते हैं. ट्रस्ट एक्ट 1882 है. सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट में आ जाती है. और सोसाइटीज एक्ट में आ जाती है. और इस तरीके से डिफरेंट टाइप की पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, so many things are there. We have already discussed in one of the video that what are the differences between the trust, society and the company. With changes in registration, their objectives, source of funding, utilization of funds and activities vary. So registration change के कारण इनके ऑब्जेक्ट में अंतर आ जाता है. कहाँ से ये फंड लेंगे उसमें अंतर आ जाता है. किसको यूटिलाइजेशन, कैसे यूटिलाइजेशन करेंगे उसमें अंतर आ जाता है. क्या एक्टिविटी टेक केयर करेंगे उसमें अंतर आ जाता है. Here it is difficult to compare the outcomes and impact created by the social sector organization. सो यदि दो सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को कंपेयर करना पड़े, उनकी आउटपुट को कंपेयर करना पड़े, उनके आउटकम को कंपेयर करना पड़े, उनके इम्पैक्ट को कंपेयर करना पड़े, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट. आउटकम एंड इम्पैक्ट ऑफ सोशल इनिशिएटिव्स आल्सो डिपेंड ऑन देयर सर्विस. तो वो कैसे उसको सर्विस दे रहे हैं उसके हिसाब से ही उसका आउटकम आता है, इम्पैक्ट आता है. उनके इंटेंडेड यूजर्स कौन हैं, उनको देने वाले कौन हैं, तो उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है. सोशल इंटरवेंशंस ऑफन लुक एट चेंजेस इन बिहेवियर, एटीट्यूड, हैबिट्स एंड वैल्यूज व्हिच कैन नॉट बी मेजर्ड विद क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स. तो हर तरह के समाज में अलग बिलीफ्स हैं, अलग एटीट्यूड्स हैं, अलग बिहेवियर हैं, अलग हैबिट्स हैं. खान पीन की हैबिट्स अलग है, रहन सहन की हैबिट्स अलग है, कपड़े पहनने की हैबिट अलग है, पूजा पद्धति अलग है. तो इन सब में अंतर आ जाता है, तो कि क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स में मापना थोड़ा डिफिकल्ट. There can be certain benchmark which the organization can set, but most of the time these benchmarks are customized to specific social intervention. So a common benchmark, registered benchmark, established benchmark ज्यादातर नहीं है, जो कस्टमाइज रहते हैं और एक स्पेसिफिक सोशल इंटरवेंशन के लिए बनाए जाते हैं. These cannot be applied across different social intervention to compare the outcomes. तो इनको एक ही छड़ी के दौरान, एक ही अम्ब्रेला के दौरान अक्रॉस डिफरेंट सोशल इंटरवेंशंस के द्वारा कंपेयर करना मुश्किल है. फॉर इंस्टांस, outcomes like improved self-esteem or enhanced social status are linked to specific culture, social system and attitudes of those beneficiaries.
ये तो किसी जगह किसी चीज को एक तरह का सेल्फ एस्टीम माना जाता है, दूसरी जगह उसको अलग मान लिया जाता है, सोशल स्टेटस के अंदर आ जाता है। तो कल्चर, सोशल सिस्टम, एटीट्यूड, उस बेनिफिट क्या बेनिफिशरीज को दिया जा रहा है, वो बेनिफिशरीज कैसे महसूस करते हैं, तो ये सब अलग अलग। These changes or improvements are captured in terms of situation prior to implementation of social intervention and post social intervention. So it cannot be compared with other groups of beneficiaries coming from completely different social systems and culture. तो इन एक दूसरे को कंपेयर करना थोड़ा चैलेंज भरा था. So another is social sector landscape in India. हमारे हिंदुस्तान में क्या चल spectrum of development interventions. Economic development is not enough until it is accompanied with social justice and investment in infrastructure for social development. So economic development तब तक नहीं हो सकता जब तक social justice ना हो. ठीक है, परिवार का एक भी आदमी गरीब हो जाए, एक भी आदमी गरीब रह जाए, तो परिवार अमीर नहीं कहलाता है. So investment in infrastructure for social development is also necessary. Towards this, there is active participation from academicians, planners, technocrats, philanthropists, and impact investors in the development. तो इस सामूहिक विकास के लिए सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, जिसमें शिक्षाविद भी होने चाहिए, प्लानर्स भी होने चाहिए, टेक्नोक्रेट्स भी होने चाहिए, दानवीर भी होने चाहिए और इम्पैक्ट इन्वेस्टर्स भी होने चाहिए. The development interventions are not unidisciplinary nor unidirectional, which they may appear to be the first sight. तो जो डेवलपमेंट इंटरवेंशंस है वो यूनिडिसिप्लिनरी भी नहीं है और यूनिडायरेक्शनल भी नहीं है. चारों तरफ 360 डिग्री कैन भी घूम सकते हैं, परंतु फर्स्ट साइड में ये ऐसे ही दिखाई. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आंसर आ सकता है कि डेवलपमेंट इंटरवेंशंस आर, से ही विल राइट डिसिप्लिनरी, तो आंसर है यूनिडिसिप्लिनरी. तो इस टाइप से क्वेश्चन आंसर बनते हैं. These interventions are interdisciplinary in approach and have a combination of methods used. तो आपस में जब तक समन्वय नहीं होगा, इंटरडिसिप्लिन नहीं होगा और एक कॉम्बिनेशन नहीं होगा सब मेथड्स का, तो उसकी सफलता के चांसेस कम हो जाते हैं. इसलिए interventions are interdisciplinary in approach and have a combination of methods. Adopted methods of interventions are guided by the social organizations, value base, belief systems, and approach towards the issue to be addressed. So, social organizations को interventions करते वक्त ध्यान रखना चाहिए कि उस बेनिफिशियरीज की वैल्यू बेस क्या है, बिलीफ सिस्टम क्या है और कैसे अप्रोच किया जा सकता है ताकि इश्यूज को एड्रेस किया जा सके. An organization mission and vision statement along with the theory of change document is usually a good reflection of this. तो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन क्या है, विजन क्या है, उसकी थ्योरी ऑफ चेंज क्या है, वो क्या चेंज लाना चाहता है, इज यूजली गुड रिफ्लेक्शन ऑफ दिस. तो उससे पता चलेगा कि ये क्या करना चाहता है, समाज में समाज को सही दिशा ले जाना चाहता है या गलत दिशा ले जाना. So need for different types of development interventions. तो हम क्या क्या कर सकते हैं. So different development interventions are discussed below. So it is very important to note that though they are categorized as the specific type of interventions, all would use a combination of intervention method. ये सब अलग अलग तो शो किए गए हैं, परंतु ये अलग अलग काम नहीं करेंगे जब तक कि इनको सामूहिक तौर पर ना दिया जाए, सामूहिक तौर पर ना किया जाए. सो यहाँ पर दिया गया है
कि टाइप ऑफ इंटरवेंशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है, आउटपुट क्या है, बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं और हमारे स्टेक होल्डर कौन कौन से हो सकते हैं। सो सर्विस डिलीवरी के अंदर अलग अलग क्राइटेरिया लिया गया है। तो सर्विस डिलीवरी में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा कि हेल्थ कैंप, यदि हम हेल्थ कैंप्स लगाएं, वैकेनाइज ड्राइव्स करें, स्पेशलाइज सर्जरीज करें, जैसे पल्स पोलियो कैंपेन, स्माइल ट्रेन इंडिया कैंपेन, तो इसके आउटपुट क्या होगा, रिडक्शन इन पोलियो केसेस। यदि हम पल्स पोलियो के कैंपेन करें तो पोलियो केसेस में रिडक्शन आ जाएगा, ये इसका आउटपुट होगा। क्लेफ्ट प्लेट सर्जरीज हो जाएंगी यदि ये बेनिफिट्स होंगे। सो ये स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं, रोटरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल, एनजीओ, सीबीओ, चिल्ड्रन विद क्लेफ्ट प्लेट। ठीक है। अगर हम स्कूल एजुकेशनल प्रोजेक्ट फॉर अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन के लिए लगाएं, इंटरवेंशन डालें, तो उससे क्या होगा कि शखरशाला फॉर शुगर केन, लेबरर्स, लर्निंग कंपेनियंस एकलव्य, ये इनके आउटपुट या बेनिफिट्स होंगे। और एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि सीजनल स्कूल चलाए, सेंटर फॉर नोमैडिक और माइग्रेंट चिल्ड्रन चलाए, जो उनके वर्कर्स के बच्चे हैं, वर्कर्स की लेडीज हैं, वर्कर्स के बुजुर्ग हैं, अगर वो घर में खाली बैठे हैं तो उनके लिए समर स्कूल चला दिए, सेंटर चला दिए, खाने पीने का सामान भी वही दे दिया, सुबह से आगे कापी पेंसिल ये सब फ्री दे दिया, उनको खाने के ऊपर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं, चाय पानी खाना सब मिलेगा। तो आप आइए, पढ़िए और लिटरेट होइए। उससे क्या होगा कि अच्छा समाज पैदा होगा। तो शक्करशाला लगा सकते हैं शुगर केन लेबरर्स के लिए, लर्निंग कैंपेन्स लगा सकते हैं। तो की स्टेक होल्डर्स कौन हो सकते हैं, शुगर फैक्ट्रीज के फार्मर्स, पेरेंट्स, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल्स। यदि तीसरा इंटरवेंशन डाला जाए स्किल एंड ट्रेनिंग सेंटर्स का, टाटा स्टाइल प्राइवेट आईटी एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे टाटा लगा रहे हैं, तो स्किलिंग बढ़ेगी, अपस्किलिंग बढ़ेगी, लाइवलीहुड एनहांसमेंट बढ़ेगा, इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी। यहाँ पर भी बेनिफिट्स किसको मिलेगा, एनजीओ, एनएसडीसी, यूथ, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को भी मिलेगा। अब इकोसिस्टम एडवोकेसी में हम क्या क्या करेंगे कि कन्वर्जेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो हमने ये कन्वर्जेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना दिया, जैसे जिसका एग्जांपल है साधन टीजे ऐसा, साधन ए सोशल रिपोर्टिंग ऑर्गेनाइजेशन या आएगा। सो कम्युनिटी डेवलपमेंट फाइनेंस हो जाएगा, पॉलिसी एडवोकेसी बनेगी, और एमएफआई, एनजीओ, सीबीओ, आरबीआई आर दी बेनिफिशियरीज। एनवायरमेंटल ग्रुप बना हुआ है, वातावरण, एंटाइटलमेंट ऑफ ड्वेलर्स टू फॉरेस्ट राइट्स, लोकल गवर्नमेंट, फॉरेस्ट गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी इसके स्टेक होल्डर्स। इसके बाद आया कि रिसर्च भी करना है, एडवोकेसी भी करना है। मान लीजिए मैटरनल चाइल्ड हेल्थ के ऊपर रिसर्च करना है, जैसे सर्च काम कर रही है, तो इम्प्रूव्ड हेल्थ स्टेटस हो जाएगा, रिडक्शन इन इन्फेंट मोर्टेलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एनजीओ को फायदा मिलेगा, गवर्नमेंट ट्राइबल वेलफेयर को फायदा मिलेगा, लोकल कम्युनिटी को फायदा मिलेगा, स्टेक होल्डर्स। गुड गवर्नेंस, अब हर देश का मिशन रहता है कि गुड गवर्नेंस। तो नेशनल सेंटर फॉर एडवोकेसी स्टडीज एनएसीएस कराता है, ये इसका एग्जांपल है। पीपल रजिस्टर राइट्स बेस्ड एडवोकेसी करते हैं, और एनजीओ, लोकल गवर्नमेंट, सिविल सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं। एनवायरमेंट, एनवायरमेंट फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन, सेंटर फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। तो एजुकेशन देनी है एनवायरमेंट के बारे में, एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड एजुकेशन फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है, जिससे कि एनवायरमेंटलिस्ट इसके स्टेक होल्डर हैं, सिविल सोसाइटी है, लोकल स्टेट है, नेशनल गवर्नमेंट है। ये एनवायरमेंट के बारे में, इन सब चीजों के बारे में तो बल्कि स्कूल लेवल से ही एफर्ट्स करने चाहिए। सो इनोवेशंस इन सोशल, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस में हमने क्या क्या किया, बिजनेस इंक्यूबेटर्स, स्टार्टअप्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी किया, वेंचर सेंटर ऑफ एनसीएल बनाए, कमर्शियलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी किया,
एंड इकोसिस्टम को इन्वेस्टर्स, साइंटिस्ट, एंटरप्रेन्योर्स, सोसाइटी एट लार्ज को बेनिफिट मिलेगा। कंटिन्यू एजुकेशन जैसे बेयर फुट कॉलेज, लाइफ लॉन्ग एजुकेशन, स्किलिंग रूरल आर्टिजन, टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट। इसमें रूरल आर्टिजन, स्टेक होल्डर, रूरल पॉपुलेशन, गवर्नमेंट, सीबीओ, लार्ज वॉल्यूम हाई क्वालिटी अफोर्डेबल हेल्थ केयर, आई सर्जरीज। तो अरविंद आई केयर ने क्या किया कि सस्ते ऑपरेशन भी, महंगे ऑपरेशन भी, गरीब के लिए सस्ता, अमीर के लिए महंगा, इसके लिए इसने क्या किया, इनोवेशन की और आउटरीच एजुकेशन की, ट्रेनिंग की, हॉस्पिटल्स बनाए और हेल्थ केयर इंडस्ट्री को बेनिफिट हुआ, गवर्नमेंट को बेनिफिट हुआ, पेशेंट्स को बेनिफिट हुआ और फैमिली एट लार्ज को बेनिफिट। इसके बाद थिंक टैंक। अब हमारे यहाँ थिंक टैंक कौन कौन से हैं? पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट, विसल ब्लोअर तो आगे आइए, ठीक है। सो पॉवर्टी एक्शन लैब जे पॉल है एग्जाम्पल, इंटर गवर्नमेंटल क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल रिसर्च सेंटर्स हैं, गवर्नमेंट सोशल एंटरप्राइजेस, मल्टीनेशनल एजेंसीज, पॉलिसी मेकर्स, यूएन एनवायरमेंटलिस्ट, पॉलिटिशियंस, सभी इसके स्टेक होल्डर्स। विसल ब्लोअर, तो विसल ब्लोअर के बारे में भी कुछ विसल ब्लोअर का काम करते हैं, एडवोकेसी करते रहते हैं कि जैसे एनवायरमेंट है, ग्रीन पीस इंडिया सोसाइटी है जैसे इसके एग्जाम्पल, तो ये बताते रहते हैं, विसल ब्लोअर करते रहते हैं कि भाई इतना नुकसान हो गया है, इससे नुकसान होगा तो ये चीज हो जाएगी, नुकसान होगा तो इतना नुकसान, इतने लोग विस्थापित हो जाएंगे, ऐसे सो मेनी थिंग्स। तो रिसर्च एडवोकेसी एज ए वॉच डॉग करते हैं, एज ए वॉच, लाइक द ऑडिटर्स। जनरल पब्लिक गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट पब्लिक, कैपेसिटी बिल्डिंग करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लीगल एडवाइस टू सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर सेंटर फॉर एडवांसमेंट ऑफ फिलैंथ्रोपी एक सी एग्जाम्पल हो गया आपका। आउटपुट क्या आएगा? लीगल कंसल्टिंग, एडवाइजरी, ट्रेनिंग फॉर सोशल सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड एनजीओ फाउंडेशन फिलैंथ्रोपिस्ट सेक्शन 8। सो हमने यहाँ पढ़ा था ये वेंचर सेंटर ऑफ एनसीएल। सो आई ट्राई टू elaborate it here, though this is not a part of the NISM book, but here Venture Center in India is a award-winning leading technology business incubators for science and technology startups. It offers a full suite of programs, services, resources, and facilities to support entrepreneurs. It specializes in supporting early stage startups, however, work with businesses at all stages, helping both startups and established companies to develop and grow. Venture Sector Research Trademark was founded in 2007 as an initiative of CSIR National Chemical Laboratory. Venture Center was incorporated as Entrepreneurship Development Center under Section 25 of the Companies Act 1956. That is converted into now Section 8 company, because all Section 25 companies are called as Section 8 company nowadays in Companies Act 2013. Venture Sector is approved incubator of National Science and Technology Entrepreneurship Development Board of Development of Science and Technology, Government of India. So after we shall come to spectrum of stakeholders and their roles in development landscape. So stakeholders के बारे में बात. In order to implement social interventions, various stakeholders are involved in the process. कौन-कौन से भैया? These stakeholders are either affecting the interventions through provision of resources, implementing the interventions, acquiring required registration,
or licenses, or they get affected by the social intervention. So stakeholders या तो अफेक्ट कर रहे हैं या अफेक्ट हो रहे हैं. Some of the stakeholders of an intervention may be board members, employees, volunteers, local community, funders, government, and beneficiaries. So these are the examples. List is illustrative. These stakeholders can further categorized as internal and external stakeholders or direct or indirect stakeholders. देखो भैया इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है कि what are the internal stakeholders, तो what are the external stakeholders, कुछ एग्जांपल दे दिए जाएंगे, नीचे आ जाएगा कि बताओ भैया ये इंटरनल है या एक्सटर्नल, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है. तो ध्यान से देखने वाली बात है इसको कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर कौन कौन से होते हैं. सो इंटरनल स्टेक होल्डर्स में आ जाएगा इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स which are the part of organization such as employees, board members, contract और part time. तो employees जो हैं वो internal stakeholders. However, the external stakeholders are not part of the internal management of the organization, but they can affect or get affected by the actions of the organization, such as funders, government, consultants, volunteers, beneficiaries, or customers, etc. So simple सी चीज है, जो कंपनी के अंदर है वो इंटरनल है, जो कंपनी के बाहर है वो. Now it is to be differentiated between direct and indirect share. So direct stakeholders are directly involved in the social interventions or get directly affected by the social intervention, whereas the indirect stakeholders are not directly involved in the social interventions but get affected by the social intervention, such as indirect beneficiaries, local community, local politicians, and leaders. In order to bring social change, it is crucial that all stakeholders contribute to the social interventions. The achievement of implementation is not only determined by the form of activity, but also by the implementation of the organization and cooperation made by the various concerned. These stakeholders have different interests in activities of the organization. So, few stakeholders and their interest with an example of social intervention in a vocational training program are exhibited here. So, यदि स्टेक होल्डर यूथ है तो उसका क्या इंटरेस्ट रहेगा कि मुझे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, डेवलपिंग इंटरेस्ट इन एडवांस स्किल डेवलपमेंट होगा कि मेरी स्किल्स को एडवांसमेंट मिलेगा, डेवलप हो जाएंगे और बेहतर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी. यदि कोई फंडर होगा तो उसका इंटरेस्ट रहेगा कि ये सब काम होने से उसके गोल्स अचीव हो जाएंगे, अचीवमेंट ऑफ गोल्स. यदि गवर्नमेंट है तो उसका इंटरेस्ट ये रहेगा कि क्योंकि गवर्नमेंट को तो सबका भला करना है, विकास करना है, गरीबी दूर करनी है, तो उसका भी डेवलपमेंट गोल की अचीवमेंट करनी है. गवर्नमेंट ने यूएन एज ए मेंबर ऑफ यूएन, he has committed that he will bring a change in all the sustainable development goals by 2030. So the most important interest is of the government. टीचर्स को रहेगा कि सेटिस्फेक्शन हुआ, अपग्रेडेशन ऑफ स्किल, पढ़ाते पढ़ाते वो भी पढ़ गए. कंपनीज में ट्रेंड फ्यूचर वर्कफोर्स, यदि कंपनीज को क्या बेनिफिट है कि उन्हें ट्रेंड फ्यूचर वर्कफोर्स लगातार मिलती रहेगी. एक आदमी तो चलता नहीं रहेगा, वो बूढ़ा भी होगा, छोड़ के भी जाएगा, रिट्रेंचमेंट भी होगा, सब तरह का काम होगा. पेरेंट्स ऑफ द यूथ क्या क्या रहेगा कि फील सिक्योर दैट चिल्ड्रन आर एंगेज्ड मीनिंगफुली एंड नॉट लॉयटरिंग अराउंड, कि उसके बच्चे अच्छे मीनिंगफुल एंगेज हो रहे हैं, सेटिस्फेक्शन मिलेगा और वो आवारागर्दी नहीं करते. So this is today from my side. We shall discuss the other parts
on the social sector in another. बहुत बहुत धन्यवाद साहब. नमस्कार.